students, I hope you are doing absolutely fine. As you know, we are going to the toughest time of the era. Yes, of course, I am talking about the COVID-19. But our school, Apple International School, always devoted to give you something special. As I am MR Raja, PGT Geography at Apple International School will teach you the first chapter of class 10, Geography, Resource and Development. Before start this chapter, let's recap some knowledge. You have known about, you have studied about the resource in previous classes. Now we will study the resource about resource in very depth. So the first chapter name is Resource and Development, as you see in the digital content. Okay, let's start with what is resource? Sansadhan. What is resource? Resource, anything which fulfill our needs और anything which satisfy our need is called a resource. कोई भी चीज जो हमारी जरूरतों को पूरा करती है और हमारी मांग को पूरा करती है वह संसाधन है, रिसोर्स है. फॉर एग्जांपल दिस डिजिटल बोर्ड, दिस चॉक, the mobile and the tripods I am using is a resource. For you I am a resource. A teacher is a resource for you. Anything, because we are fulfilling all your needs, because we are satisfying your needs. So but we say resource, anything which fulfill our needs and they are technically accessible and culturally acceptable. जो technically तकनीकी रूप से जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं और कल्चर हमारा पूरा समाज उसको यूज कर सके. These are called resource. Further resource are classified into two types. First is man-made resource, natural resource. The second one is man-made resource. Man-made resource. Okay, let's move with the natural resources. Natural resources are those resources which are given by nature in a free manner. वो सारे संसाधन जो हमें नेचर प्रोवाइड करता है free manner. For example, the land, the soil, the mountain, the solar energy. These are the example of natural resources. If we take about the example of man-made resources are those resources which are created by man. For example, the mobile you are using, the blackboard and the table, the chair, etc. and etc. Okay. So this is the difference between man-made and natural resources. Further, they are classified, which we study in later. Okay, so let's move on to the next topic, the classification of resource. These are some examples of natural resources. You can see aquatic animals, forest animals, minerals and other stone and rocks. These are some examples of natural resources. If we move on, we will find that there are some resources which are classified on the basis of the origin. This question raised in CBSE many times, and this is very important topic. The classification of just wait a minute. The classification of resources. What do you mean by classification? Suppose मैं किसी क्लास में किसी बच्चे को रैंक देता हूँ on the basis of education. इको स्टडी में कैसा है? I will categorize ABCD got first rank, XYZ got second rank, LMN got third rank. Means राहुल को फर्स्ट रैंक मिला है, प्रभजोत को सेकंड रैंक मिला है, मंजोत को थर्ड रैंक मिला है. फिर बाकी बच्चे बोलेंगे सर दैट्स नॉट फेयर, ये हमेशा स्टडी में आगे होते हैं और हमेशा इन्हीं को फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक, हमारा तो कभी रैंक ही नहीं आता. बट विल डू. मैं कहूँगा ओके लेट्स टेक अनदर कैटेगरी. फर्स्ट कैटेगरी मैंने ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन निकाला. सेकंड कैटेगरी निकाला स्पोर्ट्स में करते हैं 3 बच्चों का फिर नाम आ गया फर्स्ट में. अब आ गया साहिल फर्स्ट, रोहित सेकंड एंड सनम थर्ड रैंक में आ गया. फिर बच्चे बोले सर आपने स्पोर्ट्स में भी निकाल दिया, एजुकेशन में निकाल दिया, हमेशा ये बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आते, हमारा तो कभी नाम ही नहीं आता. फिर मैंने कहा कल्चरल इवेंट लेते हैं. कल्चरल इवेंट में मैंने फिर थर्ड बच्चों को 3 बच्चों को और निकाल दिया. ओवरऑल 9 बच्चों को प्राइज मिल गया, इसलिए सारे बच्चे सेटिस्फाइड हो गए. सेम टू सेम हम क्लासिफिकेशन रिसोर्स को भी ऐसे आगे क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैटेगरी. फर्स्ट वी क्लासिफाई रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. ओरिजिन मींस उत्पत्ति, उसका जन्म कैसा हो रहा है, हाउ दे आर डेवलपिंग. लाइक बायोटिक रिसोर्सेज. बायोटिक रिसोर्सेज आर दोस रिसोर्स व्हिच हैव देयर ओन लाइफ, जिनमें अपनी खुद की जान होती है, जो खुद जीते. दे आर लिविंग थिंग्स. फॉर एग्जांपल एक्वेटिक एनिमल्स
animals and reptiles and forest. These are called biotic resources. Abiotic resources are those resources which don't have their own life, which don't have life. For example, biotic resource like water, stones, rock, soil, air, wind, etc. and etc. Next, if we talk about on the basis of exhaustibility, किसी चीज को जब हम यूज करें वो खत्म कैसे हो रहा है, on the basis of that, on the basis of exhaustibility, we classify resources in two categories. First one is renewable resources and another one is non-renewable resources. Renewable resources are those resources which can be regenerated, reused, recycled in short span of time. वो resources जिसको हम दोबारा recycle कर सकते हैं, दोबारा यूज कर सकते हैं. For example, sunlight, solar energy कभी खत्म नहीं होती, जितना मर्जी यूज करो हम यूटिलाइज करते हैं. वाटर, हम वाटर बॉडी को जितना मर्जी यूज करो वो दोबारा पानी जमीन में जाएगा, दोबारा वो रिफॉर्मेशन हो जाएगा. ठीक है उसका. फॉरेस्ट, ये सब चीजें हैं. विंड मिल, these are some example of renewable resources. If we talk about non-renewable resources, non-renewable resources are those resources which cannot recycle or reuse and it take millions of years. Make sure that it take millions of years. ये वो संसाधन है जो एक बार यूज करने के बाद खत्म हो जाता है और दोबारा इसको बनने में एक बहुत लंबा टाइम लगता है. फॉर एग्जांपल, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस आर दोस रिसोर्सेज जिसको हम एक बार यूज करते हैं वो खत्म तो खत्म, उसके बाद उसको रीजनरेट होने में लाखों करोड़ों साल लगता है. ठीक है. ओके. सो नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इफ यू टॉक अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मैं कहूंगा ये जो चौक है ये मेरा है, मींस ये इंडिविजुअल रिसोर्स है. दिस मोबाइल, द मोबाइल आई यूजिंग, द लैपटॉप आई यूजिंग, दैट वाज माइन. तो मैं कहूंगा ये मेरा रिसोर्स है. ठीक है. तो ये क्या होगा, इंडिविजुअल रिसोर्सेज. फॉर एग्जांपल, इंडिविजुअल रिसोर्सेज आर दोस रिसोर्सेज व्हिच आर ओन्ड बाय समवन, जो किसी के द्वारा ऑन किया गया था, जो खुद की प्रॉपर्टी है. जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, योर हाउस इज योर प्रॉपर्टी, योर लैंड इज योर प्रॉपर्टी, दैट मींस दे आर इंडिविजुअल रिसोर्सेज. इफ यू टॉक अबाउट द कम्युनिटी रिसोर्सेज, गांव में एक तालाब है, देयर इज एन पॉन्ड इन योर विलेज, आप कहोगे द विलेज पॉन्ड इज फॉर एवरीवन, वो सबके लिए, सारे उससे पानी यूटिलाइज करेंगे. इफ आप जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ योर स्कूल, ये स्कूल किसी का नहीं, ये स्कूल सारे बच्चों का, सारे टीचर का, तो वो क्या होगा, कम्युनिटी रिसोर्स. रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, बैंक्स, टेंपल्स, these are all example of community resources. If we talk about the national and international resources, these both topics are very much important. I explain you again. Like you can see a map of India. Those resources which are in an country, जो resource किसी country के अंदर है, these are called national resources. For example, the forest, the flora, the fauna, the mountain, the plateau, the minerals which are occurring in a country is called national resources. And the resources which are nearby the ocean, जो हमारे ocean से 22.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द मेनलैंड. मेनलैंड मींस ओशियन के अंदर, जैसे यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, सॉरी अरेबियन सी है, अरेबियन सी, एंड हियर वी कैन फाइंड बे ऑफ बंगाल, एंड हियर वी कैन फाइंड इंडियन ओशियन, वी कैन फाइंड इंडियन ओशियन. अब ये जो मेनलैंड है, मेनलैंड से 22 किलोमीटर के अंदर जितने भी रिसोर्सेज, आप बोलोगे सर समुद्र के अंदर क्या रिसोर्सेज है, देयर आर लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज बेटा. कोल, नेचुरल गैस, मेनली द वर्ल्ड लार्जेस्ट फील्ड ऑफ नेचुरल गैसेस आर इन द डेप्थ ऑफ द ओशियन. वी कैन फाइंड फिशेस, हम यहाँ पे फिशेस हो गया और भी बहुत सारे, कोरल रीफ हो गया, एंड द जेमस्टोन्स, पर्ल्स आर एक्सेट्रा आर वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस under the ocean belts. 22 kilometers away from the mainlands are called national resources. If we talk about, अब जैसे 22 किलोमीटर away from ये हो गया national resources,
अब श्रीलंका कहेगा ये 22 किलोमीटर के अंदर वाला सामान जो है, जो रिसोर्स है वो मेरा रिसोर्स है। लेकिन कुछ जो एरिया है, जैसे ये एरिया हो गया, जैसे ये वाला एरिया हो गया, ये वाला एरिया हो गया, इस पे किसी ना किसी का तो हाथ होना चाहिए, कोई ना कोई तो इस रिसोर्स को यूटिलाइज करेगा। तो दीस रिसोर्सेज आर कॉल्ड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल ओशियंस, ओशियन किसी भी कंट्री का ओन नहीं होता है, ये सारे इंटरनेशनल और दे आर टोटली कंट्रोल्ड बाय यूएनओ, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये सारा कंट्रोल करता है इस पे टू मेंटेन पीस, टू मेंटेन ऑल द रिसोर्स, all the facilities of the international resources. UNO is the body responsible for to maintain the records of that. For now, moving to the next topic. Indivisible resources, like I said, the forage, the flora, the fauna, these are called indivisible resources. Next, community resources, as I said, park, children park, ponds, lakes, etc., etc. And this is example of national resources. The animals, the flora, the fauna, the railway, these are called national resources which are owned by a country. Next, if we talk about international resources, the ocean belts of a country, ocean belts of the world, the earth is called international resources which are owned by everybody, which are owned by UNO, which are controlled by UNO. Next. Okay, the next topic is, guys, on the basis of status of development, how we are developing that resource. Look at the first one is potential resources. Potential resources are those resources which are in an area but we are not utilizing that because of lack of skill, lack of knowledge and lack of capitals. वो सारे रिसोर्स जो हमें पता है कि यहाँ पर है पर हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, एंड इवन वी डोंट हैव कौशल, हमारे पास स्किल नहीं है, इसलिए हम इसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ जैसलमेर। जैसलमेर इज अ डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। साइंटिस्ट ने एक अनुमान लगाया, साइंटिस्ट हैव अज्यूम्ड दैट इन द डेप्थ ऑफ द डेजर्ट ऑफ थार डेजर्ट देयर इज अ फील्ड ऑफ कोल पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कहते हैं कि यहाँ पे पेट्रोलियम के बहुत ज्यादा खान है, जमीन के नीचे बहुत सारा खान है, लेकिन हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे बिकॉज हमारे पास स्किल नहीं है, हमारे पास नॉलेज नहीं है और हमारे पास इतना कैपिटल नहीं है और हमें नॉलेज नहीं है कि जो उसके अंदर जो जैसलमेर के डेप्थ के नीचे जो कहते हैं थार डेजर्ट के नीचे जो पेट्रोलियम है वो कौन सी क्वालिटी का पेट्रोलियम है, कैन वी यूज इट और नॉट, तो दैट व्हाई वी आर नॉट यूटिलाइजिंग एंड दीस रिसोर्सेज आर कॉल्ड potential resource. Next is developed resource. Developed resources are those resources which we are developing. Okay, just back. Developed resources are those resources which we are using, जो हम आप present day में use कर रहे हैं. For example, coal, petroleum, natural gas, mineral, etc., etc. Stocks and reserves are those resources which are reserved for our future generation. ये वो resource है जिसको हम future generation के लिए use कर रहे हैं, जिसको हम utilize नहीं कर रहे हैं. ठीक है? Okay, you have to think about twice. You have to remember potential. So this one was most important topic in 1 marks question as per the CBSE norms. Moving to the next topic. Our next topic is what do you mean by development of resource? Why there is a need of development of resource? आपको पता है हम resource का इस्तेमाल क्यों करते हैं? Okay, let's move in. It is the process of developing the resource in order to make the use of satisfying human wants. रिसोर्स हम इसीलिए यूज करते हैं बिकॉज ये हमारी जरूरतों को पूरा करता है, ये हमें सेटिस्फाई करता है. सम रिसोर्स कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली, दे हैव टू बी प्रोसेस्ड टू मेक द यूजफुल ऑफ सेटिस्फाई. और कुछ रिसोर्स को हम डायरेक्टली यूज नहीं करते, हम उसमें थोड़ा वैल्यू एडेड करते हैं, उसको हम थोड़ा कन्वर्ट करते हैं, देन ओनली वी कैन यूज. ठीक है, ऑफ कोर्स जैसे हम टेबल चेयर की बात लेते हैं, टेबल चेयर लकड़ी को हम सीधा यूज नहीं यूटिलाइज ना करके हम उसमें थोड़ा वैल्यू ऐड करते हैं, थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग करने का प्रोसेसिंग करने के बाद हम चेयर टेबल या फर्नीचर आइटम यूज करते हैं. दिस इज लाइक डेवलपिंग ऑफ रिसोर्स. हम रिसोर्स को कैसे डेवलपिंग करें. नेक्स्ट, what are the problems created by indiscrimination and exploitation of resource? Very much important question for 3 marks. Or this question may be like indiscrimination use of resource lead to many problems and difficulty. Justify the statement or examine the statement. संसाधन का अत्यधिक यूज या अत्यधिक एक्सप्लॉइटेशन ने बहुत सारी समस्याओं को जन्म दिया है. अपने उत्तर का संक्षिप्त में वर्णन करें. 3 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन बार-बार बोर्ड में आता है. बाय देखो, मैनी रिसोर्सेज गॉट डिप्लीटेड. फर्स्ट ऑफ ऑल जितना ज्यादा हम रिसोर्स को यूज करेंगे उतनी जल्दी वो क्या होगा, खत्म होगा. खत्म होगा मींस दे आर
नॉट वो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए नहीं बचेगा। सेकंड पॉइंट, रिसोर्स गॉट एक्यूमुलेटेड इन द हैंड ऑफ फ्यू पीपल्स। अब रिसोर्स क्या है? रिसोर्स कुछ ही जनों के पास है, सबके पास नहीं। फॉर एग्जांपल इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, this area is rich in mineral resources, mineral resources, this area is rich in mineral resources। लेकिन अब आप देखो ये फ्यू हैंड्स में, बाकी स्टेट्स में रिसोर्स नहीं है, तो ये रिसोर्स क्या है? बाकी स्टेट को ये सेंड करेगा, ठीक है ना, भेजेगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड अदर प्रॉब्लम। हम जितना ज्यादा रिसोर्स को इस्तेमाल करेंगे, जितना ज्यादा हम इसको यूटिलाइज करेंगे, जितना ज्यादा हम इसको ओवर यूज करेंगे, विल मेक ग्लोबल वार्मिंग। ओजोन लेयर डिप्लीशन होगा तो वर्ल्ड का टेंपरेचर, जो पृथ्वी का टेंपरेचर, जो अर्थ का टेंपरेचर, वो डे बाय डे इंक्रीज होगा। एंड यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम। आपने फील किया होगा क्लाइमेट चेंज। इस चैप्टर में 9th क्लास में आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, क्लाइमेट नहीं, इसी 10th क्लास में आप आगे पढ़ोगे क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज सबमिशन हुआ था 1991 रियो द जेनेरो, ब्राजील में। वहां पर इस मुद्दे पे बात की गई थी कि जो दिन ब दिन क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कि नवंबर में भी गर्मी लगती है और कहते हैं आप फरवरी में कहते हैं मार्च में भी ठंड नहीं जाती। तो ये कारण क्या है? डे बाय डे जो क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो रहा है, इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। तो ये सारा जो है हम नेक्स्ट फर्दर टॉपिक्स में पढ़ेंगे। आपके सीबीएसई में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। सो फॉर सो गुड बेटा, आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे पार्ट 2 में। For so good, God bless you all. We are from Apple International School. Admission are in progress. For more detail, contact on this number. Thank you so much.